Today we will start with theory of demand and supply. First we will discuss about demand. In economics, demand doesn't mean any desire. The desire has to be strong. There should be strong desire, and that again should be backed by sufficient purchasing power. That means the consumer wants something and he has the purchasing power to buy that commodity. Effective demand. In economics, demand means effective demand. That means strong desire should be there and the consumer must have the purchasing power to buy the commodity. Okay. Now we will come to the law of demand. There are so many determinants of demand. A number of factors decide what the demand of a commodity will be in the market. Okay. If you put it mathematically, we will get that demand for a commodity X is a function of price of commodity X, price of related goods, income of the consumer, taste and preference of the consumer, and maybe a number of other factors. Demand of a commodity will be determined by a number of factors. But if we keep all other factors constant and only price is the only factor playing in the market, then what will be the relation between demand and the price? That is known as the law of demand. That means law of demand tells us the functional relation between the quantity demanded of a commodity and the price of that commodity. According to the law, other things remaining constant, the quantity demanded will increase with the fall in price and will decrease with a rise in the price of the commodity. This is the famous law of demand. Now we will come to the demand schedules. Schedule means a table. A demand schedule will show us a series of prices and the corresponding quantities that an individual or market is demanding. That means we have two kinds of demand schedules: individual demand schedule and the market demand schedule. In the individual demand schedule, we get a table that will explain us, will give us a series of prices and the corresponding quantities that an individual will demand at each individual prices. That is known as the individual demand schedule. Market demand schedule likewise will tell us what are the different quantities that all the consumers in the market will demand at each individual prices. That means in the market demand schedule also we are going to have a table with different prices. These prices shows us the different possibilities. Actually at any particular time only one price will prevail in the market and corresponding quantity demanded will be there. So market demand schedule we will get by adding up the individual demand schedule of all the consumers in a particular market. Okay. The law of demand tells us that the quantity demanded will increase with a fall in price and decrease with a rise in price. It means that the demand curve will be downward sloping. That means there is an inverse relation between quantity demanded of the product and the price of that particular product. So now we will discuss why this demand curve is downward sloping. Okay. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो डिमांड कर्व है इसका जो रीजन है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं यहाँ पे हम लोग. पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है? लुक एट दिस. डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी. दिस इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये ऐसा क्यों दिखता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग से मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो यानी कि सपोज हम लोग इस पॉइंट पे हैं, दिस इज द प्राइस P, दिस इज द क्वांटिटी Q. हम यहाँ से कहीं मूव कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं. सपोज करो प्राइस फॉल हो गया P1, तो क्वांटिटी हमारा क्या होगा? ड्यू टू दिस कर्व क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग टू फ्रॉम Q to Q1.
दैट मीन्स प्राइस फॉल किया, क्वांटिटी राइज किया। ये क्यों हुआ? बिकॉज दिस इज द लॉ। प्राइस फॉल किया, क्वांटिटी राइज किया, दिस इज द लॉ। और ये लॉ को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट दिस शेप। तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी क्यों बढ़ता है, प्राइस राइज होने से क्वांटिटी क्यों घटता है। क्योंकि इस इनवर्स रिलेशन की वजह से ही ये डाउनवर्ड फॉल करता है। इस इनवर्स अपोजिट रिलेशन को हम लोग इस तरह के कर्व पे ही दिखा पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखते हैं, इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। पहला क्या था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एक कंज्यूमर अगर एक फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करता है, उसको लगता है उससे उसको 10 रुपीज का यूटिलिटी मिल रहा है, तो वो उसके लिए 10 रुपीज देने को तैयार है। वो नेक्स्ट अगर कंज्यूम करेगा तो इस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, उसका यूटिलिटी सेकंड यूनिट से घटता चला जाएगा। सपोज करो उसको सेकंड यूनिट से 9 रुपीज का यूटिलिटी मिला, ₹9, थर्ड यूनिट से ₹7, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से उसको 10 मिला, 10 रुपीज का यूटिलिटी, सेकंड से 9 का, थर्ड से 7 का। तो वो अपना कंजम्पशन तभी बढ़ाएगा जब उसको ये सारे यूनिट कम प्राइस में मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने के लिए प्राइस को घटना पड़ेगा। दिस इज द रीजन वी हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नेक्स्ट वन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द कमोडिटी इन द क्वेश्चन, हम जिस कमोडिटी का बात कर रहे हैं, सपोज करो कमोडिटी X, इसका प्राइस फॉल होता है। देयर आर अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ऑल्सो। तो ये जिसको कि हम इसके जगह पे यूज कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो इसका प्राइस फॉल करता है, दिस विल बिकम रिलेटिवली चीपर। तो हम जो दूसरे प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, ये रिलेटिवली चीपर हो गया। अब हम उसको वहां से अपना कंजम्पशन को कर्टेल करेंगे, कट डाउन करेंगे और उस पैसे से यहाँ परचेज करेंगे। तो इसका क्या होगा? इसका प्राइस फॉल किया, इसका कंजम्पशन बढ़ गया, यानी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। नाउ वी कम टू द इनकम इफेक्ट। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज फॉल्स, कमोडिटी का प्राइस फॉल कर गया। अब कंज्यूमर को जो क्वांटिटी चाहिए यूज करने के लिए, वो पहले से कम अमाउंट स्पेंड करके खरीद पा रहा है। सपोज ₹10 पे उसका एक्सपेंडिचर था ₹50, बिकॉज क्वांटिटी था 5। अब प्राइस फॉल करके अगर 5 हो जाएगा तो 5 यूनिट में वो 5 यूनिट परचेज करने के लिए उसको ₹25 लगेगा। उसका 25 रुपीज सरप्लस बच रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन द रियल इनकम, यानी वो उसके पास उसका इनकम तो सेम है, उसका जो सैलरी वेजेस जो भी है सेम है, लेकिन उस सैलरी से उसका परचेजिंग पावर थोड़ा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि एक कमोडिटी का प्राइस फॉल कर गया है, उसके पास ये 25 रुपया बचा हुआ है। अब नेचुरली वो इसमें से कुछ पैसा इसी कमोडिटी पे खर्चा करेगा, यानी इसके क्वांटिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। और इसका वजह क्या है? फॉल इन द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी। सो वी हैव द इनवर्स रिलेशन, वी हैव द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, और ये सारे तो क्लियर है। न्यू बायर्स आएंगे, ओल्ड बायर्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे एंड वी हैव द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। ओके, अब हम आगे देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। यानी जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो ये बताता है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी फॉल करेगा या प्राइस घटने से क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, ये रूल सब जगह पे फॉलो नहीं होता है, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज जिफिन, जिफिन बूट्स। सर रॉबर्ट जिफिन जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक पर्टिकुलर फेनोमेना एमंग वेरी लोअर इनकम क्लास, जो बहुत पुअर पीपल हैं, उनके बीच में उन्होंने एक फेनोमेना को ऑब्जर्व किया था। इसीलिए उनके नाम से ही इसको हम लोग जिफिन बूट्स बोलते हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बहुत लोअर इनकम क्लास होते हैं, उनका जो बेसिक फूड आइटम है, जो उनको चाहिए ही, उसके केस में ये लॉ ऑपरेट नहीं होता है, बिकॉज वो उनको उसका मिनिमम क्वांटिटी चाहिए ही। तो इस केस में क्या होता है, अगर जिफिन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो वो उसका कंजम्पशन नहीं घटा पाते हैं, बिकॉज उनके लिए ये सबसे
मिनिमम प्राइस का प्रोडक्ट है और जो साथ में वो कमोडिटी यूज करते होंगे वो इस डिफरेंट गुड्स से डियरर है, तो उनको अपना डेली का खर्चा या जो खाने के लिए पेट भरने के लिए चाहिए वो डिफरेंट गुड्स से उनका काम करता है। तो इसका अगर प्राइस राइज भी करेगा तो वो दूसरे कमोडिटी को छोड़ करके उस पैसे को यूज करके डिफरेंट गुड्स को उसके जगह पे लेंगे ताकि सब कंबाइन करके उनका जो मिनिमम डेली फूड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ओके, तो इन केस ऑफ डिफरेंट गुड्स वी कैन सी अ पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा डिफरेंट गुड्स का, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ओके, स्पेक्यूलेशन अबाउट फ्यूचर, कंज्यूमर अगर स्पेक्यूलेट करता है कि इन द फ्यूचर द पार्टिकुलर कमोडिटीज प्राइस इज गोइंग टू राइज फर्दर प्राइस राइज को स्पेकुलेट कर लिया दिमाग में, तो इवन इफ द प्राइसेस आर राइजिंग एट प्रेजेंट वो अपना कंजम्पशन को नहीं गिराएगा। ठीक है, उसको लगेगा कि प्राइस और बढ़ने वाला है तो हम इसको स्टोर करके स्टॉक करके रख ले। ओके, कंस्पिशियस प्रोडक्ट, ये वो गुड्स है जिसको यूज करने का पर्पज है कि कंज्यूमर अपना एक मतलब प्रेस्टीज से रिलेटेड कमोडिटीज है, सोसाइटी में अपनी स्टेटस को शो करने के लिए ही ये कंस्पिशियस गुड्स परचेज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड डायमंड क्यों परचेज किया जाता है? बिकॉज हाईली प्राइस्ड है, उसका एक स्टेटस है। अगर इसका प्राइस पीतल या लोहा के जैसा हो जाएगा तो फिर उसका वो जगह नहीं रह जाएगा, फिर उसके लिए मारामारी नहीं होगा। तो गोल्ड का प्राइस, डायमंड का प्राइस भले ही राइज करता जाए, कंज्यूमर उसके कंजम्पशन को घटाएंगे नहीं, बिकॉज उसका तो पर्पज ही वही है, वो ये शो करना चाहते हैं कि वो हाईली प्राइस्ड कमोडिटी को यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट में, शेयर एंड स्टॉक मार्केट में बायर्स का ऐसा सोच है कि जो स्टॉक राइज कर रहे हैं दैट मीन्स दे विल गो कंटिन्यू टू राइज इन द फ्यूचर ऑल्सो। जो फॉल कर रहे हैं वो फॉल करते जाएंगे, जो राइज करते जाएंगे, तो राइजिंग प्राइसेस में इन्वेस्ट करेंगे, परचेज करेंगे उसको, और जो फॉलिंग प्राइसेस वाले शेयर्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे। यानी यहाँ पे कोई डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा है। बैंड वैगन इफेक्ट, कंज्यूमर ये शो करना चाहता है कि वो पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, एक सोसाइटी के पर्टिकुलर क्लास को, एक ग्रुप को। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास है उसके जो हैबिट्स है, वो जिस तरह का प्रोडक्ट यूज करता है, जिस तरह के हॉबीज रखता है, उसी को कंज्यूमर फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का या उस ग्रुप के हॉबी में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ भी रहा है तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, उसका कंजम्पशन को घटाएगा नहीं, क्योंकि वो ये शो करना चाहता है कि वो उस क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, सपोज कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी या बिजनेस क्लास है, जो वो लोग जो है उसमें गोल्फ प्ले करना कॉमन है, तो एक दूसरा जो बिजनेस पर्सन है, फॉर्म ओनर है, वो ये दिखाना चाहता है कि हम भी उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो गोल्फ के जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो वो उसको ही विल कंटिन्यू टू बाई दैट कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे पर्पज ये है, हम ये शो करना चाहते हैं कि हम उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उस ग्रुप के लोग का जो हॉबी है, जो परचेजिंग पैटर्न है, उस हिसाब से हम करेंगे। प्राइस मेरे लिए घट गया, बढ़ गया, उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगा कंज्यूमर। इल्यूजन, कंज्यूमर को ऐसा भ्रम है, वो ये सोच के चल रहा है कि ज्यादा प्राइस मतलब बेटर क्वालिटी। कोई कंपनी मार्केट में कोई कमोडिटी लेके आया उस एक पर्टिकुलर प्राइस में, बाद में जाके उसका प्राइस गिरा दिया, एक क्लास ऑफ कंज्यूमर ऐसा है, वो ये सोचेगा कि जरूर इसको क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा, प्राइस घटने से कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा उसका। ठीक है, वो ऐसा थिंकिंग लेके चल रहा है, थॉट प्रोसेस लेके चल रहा है कि दाम घट गया यानी क्वालिटी कंप्रोमाइज हुआ है, और दाम बढ़ा दिया अगर कंपनी तो लगेगा कि जरूर इसमें कुछ बेटर है, थोड़ा सा नाम लेबलिंग चेंज कर दिया, उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, तो कंज्यूमर का ये सोचना है कि इसमें कुछ क्वालिटी एड ऑन हुआ है। प्रैक्टिकली हुआ है नहीं हुआ है अलग बात है, बस कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट देख के या कुछ भी देख के उसको लगेगा कि ये बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है, हम इसको हाई प्राइस में खरीदेंगे। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। सो दीज आर द एक्सेप्शंस। ओके, नाउ अगेन वी आर कमिंग टू द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन यानी क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी और उसके जो जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ओके, तो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
For example, price of that commodity, price of substitute, price of complement goods, income, taste preference, and maybe a lot of other factors. Okay, that means these are the determinants of demand. ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी डिमांडेड होगा मार्केट में. Complement goods. Demand of a commodity depends on the price of related goods also. This related goods can be either substitute goods or complement goods. Related जो है रिलेशन दो तरह का हो सकता है, सब्स्टिट्यूट वाला रिलेशन, कंप्लीमेंट वाला. सब्स्टिट्यूट यानी टू प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट इफ वी कैन, अगर हम दोनों में से एक दूसरे को आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक के जगह में दूसरे को यूज कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट है. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, दोनों सब्स्टिट्यूट है आपस में. अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो मेरे पास में ऑप्शन है हम कॉफी यूज करेंगे. ओके, कंप्लीमेंट यानी जिसको एक साथ में कंबाइन करके यूज किया जाता है, जिसको साथ में यूज करना है. कार एंड पेट्रोल, कार लेंगे तो पेट्रोल साथ में चाहिए, या चाय बनाएंगे तो शुगर और टी और मिल्क सब चाहिए, सब कंप्लीमेंट है आपस में. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्राइस ऑफ द गुड्स. लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं तो हमको पता ही है कैसे रिलेटेड है. तो प्राइस ऑफ द गुड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा. ठीक है, तो हमको क्या पता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज करने से नॉर्मली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस. वी हैव अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, if the price of quantity demanded of a commodity depends on the price of substitute also, उसके substitute के प्राइस पे भी डिपेंड करेगा. सपोज फॉर एग्जांपल टी और कॉफी है, तो टी का क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ कॉफी पे. ठीक है, सपोज करो कॉफी का प्राइस फॉल हुआ है, कॉफी का प्राइस फॉल हुआ है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कॉफी और टी आपस में रिलेटेड है तो कॉफी को प्रेफर करेगा ज्यादा, टी का कंजम्पशन घट जाएगा. यानी कॉफी का प्राइस फॉल, टी का कंजम्पशन फॉल, यानी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन. मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ हमारा प्रोडक्ट एक्स इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वाई. ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में. प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट को तो साथ में यूज करना है, दोनों को साथ में यूज करना है. सपोज करो पेट्रोल और कार है, हम पेट्रोल का क्वांटिटी का बात कर रहे हैं. सपोज करो फॉर एनी रीजन प्राइस ऑफ कार फॉल कर रहा है, प्राइस ऑफ कार, तो हमारे जो कमोडिटी इन क्वेश्चन है पेट्रोल का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. प्राइस ऑफ कार इज फॉलिंग, तो ऑब्वियसली कार का डिमांड बढ़ जाएगा. कार का डिमांड बढ़ेगा तो कार चलाने के लिए साथ में पेट्रोल चाहिए, तो क्या होगा, पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा. कार का प्राइस डाउन गया, पेट्रोल का डिमांड अप गया, इनवर्स रिलेशन दोनों में हो गया. ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉर्मल सा बात है, किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ने से वो कंजम्पशन बढ़ाएगा. इनकम बढ़ने से नॉर्मली इन केस ऑफ जो नॉर्मल गुड है, नॉर्मल जो गुड है, इन्फीरियर को अगर हटा दे तो नॉर्मली एक ठीक ठाक जो नॉर्मल कमोडिटी है उसका कंजम्पशन इनकम बढ़ने से बढ़ेगा. पॉजिटिव रिलेशन. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर भी डिटरमाइन करता है कि क्या डिमांड होगा. टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से किसी का डिमांड रहता है कमोडिटी का, टेस्ट चेंज भी हो जाएगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा. टेस्ट कैसे चेंज होता है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट दे दे करके हम कंज्यूमर के हैबिट को, टेस्ट को, प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं. पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करेगा, कंट्री का इन जनरल कंट्री का पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर गया तो ऑब्वियसली किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है डिमांड का, किस कम्युनिटी का घटेगा या बढ़ेगा, कितना होगा. फॉर एग्जांपल रेनी सीजन में हम लोग अम्ब्रेला डिमांड करते हैं, और विंटर सीजन में टी कॉफी ज़्यादा डिमांड में रहता है. ओके, सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स, द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी.